Good evening, everyone. Please let me know when to begin. It's already time. You can start, ma'am. All right. Thank you so much. So, a very good evening to all the teachers who are here to attend this session. Today, we are going to have a session on enhancing life skills. This is part of life skills that we are going to talk about, and the subtopic being empathy. So, empathy is what we would be trying to understand why we as teachers need to be empathetic, why and how we can make our students empathetic. All right. So starting off, so when we talk about the word empathy, there are a lot of things that come into our mind. So we talk about compassion here, right? We talk about connect that happens between two people, uh, the skill of listening, the skill of hearing people talk, the skill of speaking, the skill of how we can support and help people, right? So the feelings that we try to understand about others, the emotional connect that we try to make, the awareness that we have for each other. All this put together would talk about empathy. So, what is empathy actually? The dictionary meaning of empathy is the feeling that you understand and share another person's experience and emotions, right? Uh, जब आप किसी और की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी एक्सपीरियंस और इमोशंस को समझते हैं तरीके से, राइट? द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्सेस फीलिंग, जो कोई और फील कर रहा है उसको उसी तरह से क्या हम फील कर सकते हैं, दैट इज एम्पैथी. सो एम्पैथी इज सीइंग विथ आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों से उनकी परेशानी को समझना, उनकी तकलीफ को समझना, उनकी जरूरतों को समझना. सो एज अ टीचर इन द क्लासरूम, how do you view your students? Do you look at the problems of your students from their point of view, right? This is what we need to understand. So seeing with the eyes of others, listening with the ears of others, दूसरे क्या सुनते हैं उसको उनकी तरह से समझना. देखिए, हर चीज जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला बोलता है वही सही है, वैसे ही करना है. थोड़ा सा फाइंडिंग आउट करना जरूरी है, बट कई बार जब इमोशनली कोई वीक होता है तो वो अपनी फीलिंग्स को जिस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता है उसको समझना बहुत जरूरी है. एंड फीलिंग्स विद द हार्ट ऑफ अदर्स, तो दूसरे की परेशानी को उसकी नजर से देखना, उसकी नजर से समझना और तब उसकी मदद करने की कोशिश करना is empathy. I hope this is clear to everyone. So empathy is the ability to understand and share the feelings of others or another person. Okay. So it is recognizing someone's fears, frustrations, and feelings and feeling with them, right? तो कई बार क्या होता है कि कोई बहुत शांत बैठा होता है क्लास में, जैसे आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, कहीं और खोया हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. आप ये बार बार नोटिस करते हैं. तो इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए वो उस तरह से बिहेव कर रहा है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज बॉदरिंग हिम. किसी तरह का फियर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, किसी तरह का झगड़ा हो गया हो या किसी तरह की प्रॉब्लम में वो फंसा हो, कोई भी बात हो सकती है. सो इन अनदर वर्ड्स, इट इज पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर्स शूज. दूसरों की जगह पे खड़े होकर देखना. लेकिन हम अपने जूता पहन के जब चलते हैं तो बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं. वही जब हम किसी और का जूता पहनते हैं तो उनका पैर का साइज, चौड़ाई, weight of the feet, everything is felt differently. So understanding that we can step into other person's shoes and try to understand is something important. So empathy is more of a skill rather than simply an emotional response. ये एक emotional response खाली नहीं है कि आपको किसी ने अपनी परेशानी बता दी और आपने उसके लिए सहानुभूति जता दिया.
That is not empathy. Empathy is a skill that you have to develop. अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं, राइट? अगर मुझे कंप्यूटर का स्किल नहीं आता तो अब मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर के बारे में सीखने की कोशिश करती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ, समझती हूँ. दैट इज हाउ आई लर्न. सो एम्पैथी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्किल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड the mindset of the other person, what the person is thinking, how the person is feeling, what is it that is bothering him. Can I listen and try to help? Can I accept things as it is? कई बार परेशानियां किसी की सुनना और देखना एक चीज होती है, समझना कंप्लीटली दूसरी चीज होती है. हम अपनी कमेंट मार के या हम अपना सजेशन देके जरूरी नहीं है कि सामने वाले की मदद कर सके. हमें पहले उसकी परेशानी उसकी नजर से समझना पड़ेगा, फिर किसी तरह का सजेशन देना या सपोर्ट करना इज व्हाट वी शुड लुक इनटू. ओके, सो व्हाट पीपल थिंक एम्पैथी इज, क्या लोग क्या सोचते हैं एम्पैथी के बारे में. लोगों का मानना है कि एम्पैथी का मतलब है कि फीलिंग सॉरी फॉर समवन. कोई परेशान है तो मैं उसके लिए मैं सहानुभूति जता के उसको, ओ आई एम सो सॉरी अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. That is not empathy. So what empathy actually is, sensing other people's emotions. समझना पड़ेगा. मैं एक बंदे को काफी देर तक या काफी दिनों तक ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बिहेवियरल पैटर्न को ऑब्जर्व करती हूँ, उसके काम करने के तरीकों को ऑब्जर्व करती हूँ, उसकी थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लगने लगती है, राइट? इमेजिनिंग हाउ समवन फील्स. I have had a bad day at home. Okay, I've had a fight at home. I come back to my place of work. I'm upset about it. Okay, I sit in the staff room with a very sad feeling, and somebody else comes and starts cracking a joke. I'm not interested. It does not even affect me. Why doesn't it affect me? Because I'm not in that frame of mind. So we need to respect every person's frame of mind also, and try to understand how he or she feels. हर इंसान की लाइफ में खुशियां हैं तो शेयर ऑफ अनहैप्पीनेस भी है, राइट? सो हर दिन हमारा बहुत प्लेजेंट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत enjoyable हो जरूरी नहीं है. It is possible that each one of us have a bad day or a difficult day, and it would be nice if people would respect how I feel and deal with me. जरूरी नहीं है कि सामने वाला एकदम समझ जाएगा मुझे क्या, पर अगर मेरे क्वाइट रहने के पैटर्न को अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ये जरूर समझ जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके, इमेजिन व्हाट समवन इज थिंकिंग. तो मैं ये कम से कम ये तो समझ सकती हूँ कि शायद वो किसी चीज से परेशान है. हो सकता है घर में कुछ परेशानी हो सकता है स्कूल में ऐसा कुछ हो गया हो जिसके कारण वो परेशान हो, राइट? मिररिंग समवन्स फीलिंग. कई बार जब कोई आपके साथ किसी परेशानी को शेयर करता है तो उसको समझने के लिए कई बार हमें अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल के देखना पड़ता है, राइट? अगर मैं उसकी सिचुएशन पे होता तो मुझे कैसा फील होता. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? Identify how a person is feeling. It is important after you come to know that something, this is what is wrong with the person. मुझे उस इंसान के थॉट प्रोसेस या उसका मेंटल स्टेट के बारे में समझना बहुत जरूरी है. Understanding another person's feeling also, right? What I feel is my way, right? What he is feeling is what we should try to understand. कई बार मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो सोच रही हूं जिस परेशानी के बारे में जो उस बंदे की है वो शायद सेम ना हो, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी बहुत जरूरी है. सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, तो बोलते अच्छा तो इसकी ही तो गलती है. हम एक तरफा सोचते हैं. जब तक हम दोनों, अगर दो जने के बीच की बात है तो दोनों तरफ से अगर हम हर पॉइंट को नहीं समझेंगे तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को जजमेंट नहीं दे सकते, राइट? रियली लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से. अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो सबसे पहले जजमेंटल होना बंद करें, सिर्फ क्वाइटली सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करें.
फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय अदर्स ट्रेजेडी। अब कोई सामने वाले की कोई फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, somebody has passed away और some accident has happened, तो अगर हम ही उस परेशानी को सुनने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड को उस इंसान के ऊपर इम्पोज करने लग जाते हैं, तो हम शायद मदद नहीं करते, हम उसको सामने वाले को और परेशान करते हैं। सो एम्पैथी इज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन, द वे ही और शी थिंक्स, फील्स, or goes through that state of mind. All right, so this is something that we need to understand. So empathy is very important. Now what we have done here is we have tried to create a with the word empathy हमने कुछ क्रिएट किया है जिससे कि हम एक बेटर कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ कर सकते हैं। जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ द अदर पर्सन is feeling, then this is the acronym that we can use for empathy. E for eye contact. हम सामने वाले के साथ जब बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट के साथ बात करें। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को रिलैक्स्ड रखें, राइट? हम ही खुद टेंस्ड ना दिखें, राइट? रिलैक्स्ड फेस एक्सप्रेशन के साथ हम सामने वाले के साथ बात करें। हमारा पोस्चर ऐसा हो जो कि थ्रेटनिंग ना हो, खुद का भी कंफर्टेबल हो। आई सिट विद अ कंफर्टेबल पोस्चर, राइट? एंड what the other person is trying to say, let me feel that and get affected, feeling मुझे affect कर रही है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बिल्कुल unaffected होके किसी की बात सुनेंगे तो it will not reach me, I will not be able to connect with the other person, forget have a communication, right? My tone of voice, मैं जिस voice tone में सामने वाले से बात कर रही हूँ, सामने वाला can be a child, he can be an adult, he can be a woman, he can be a man, he can be anybody, okay, he or she, right? So we have to make sure that we don't appear threatening to the person. So हमारी tone of voice should be composed, बहुत काम और लो टोन में हमें बात करना चाहिए। एंड जो सामने वाला जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है, विदाउट इंटरप्टिंग पूरी बात हमें सुननी चाहिए। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ना शुरू करें, हम सामने वाले की बात को पूरी तरह से कंप्लीटली पहले सुन लें। सब होने के बाद ही हमें अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए, और जब आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो सोच समझकर हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, जजमेंटल होके नहीं देना चाहिए। सो द एक्रोनिम that we are using here for empathy for better communication are these. I hope this is clear to everyone. Now there are three types of empathy. Now when we talk about empathy, empathy भी तीन तरह की होती है। First of all, cognitive empathy. Now what is the meaning of cognitive? Cognitive is something that is related to our conscious intellectual, है ना? हमारी conscious इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो होती है, जो हमारे दिमाग से होती है, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग और ट्राइंग टू रिमेंबर एंड कनेक्ट थिंग्स। सो कॉग्निटिव एम्पैथी क्या होती है? इट इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन थिंक्स एंड फील्स by becoming a good communicator and relaying information in a way that connects with the other person. जब हम समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ सामने वाले से कनेक्ट करते हैं, तब कॉग्निटिव एम्पैथी कहलाती है। नाउ इमोशनल एम्पैथी क्या होती है? व्हेन वी कनेक्ट विद द पर्सन बाय शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अनदर, वी बिल्ड एंड नर्चर इमोशनल कनेक्ट। हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं सामने वाले के साथ। इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हम कैसे कहते हैं? आई नो हाउ यू आर फीलिंग, I can relate what you think about, right? And in your place, even I would have gone through the same feeling. ये emotional connect होता है। Emotional empathy इस तरह से होती है। Compassionate empathy क्या होती है? When one goes beyond understanding others and sharing their own experience, we look to take action and help another person. जैसे सामने वाले ने आपको कुछ बताया,
हम उसको समझ के उसके एक्सपीरियंस को हमारे किसी एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके हम उसके साथ में जब शेयर करते हैं और उसको उससे मदद करते हैं. इफ आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, हाउ डिड आई डील विद इट, how did I work on it, is what compassionately I would try to empathize with the person. I hope I'm clear till now. Now, how can you as a person become an empathetic person? More is when you are already an empathetic person. If you are not, and if you're slightly empathetic, how can you make yourself more empathetic? Now, first thing is actively listening more than you speak. जैसे मैंने आपको कहा, आप किसी से भी कनेक्ट करते हैं, किसी, अब देखिए ये सिचुएशन, एम्पैथी आप अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने स्कूल में, अपने कलीग्स के साथ, और अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ, ये सिचुएशन आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. बच्चे अगर स्कूल में परेशान हैं तो आप उनसे कैसे कनेक्ट करके उनकी बात को समझते हैं, तो यू आर गिविंग देम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज लिसन टू देम विदाउट स्पीकिंग. बिना कुछ बोले पहले पूरी बात को सुनिए. मोस्ट ऑफ अस स्पीक एटलीस्ट ट्वाइस एज मच एज वी लिसन. एक सेंटेंस सुना नहीं कि हमने अपना जजमेंट देके ज्ञान देना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट राइट. जब तक हम सामने वाले की स्टेट ऑफ माइंड को कंप्लीटली नहीं समझते हैं और उसके बाद रिएक्ट नहीं करते हैं, तब तक आप क्लियरली उस बंदे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. Empathetic person will listen first and only speak after they have carefully heard. आप पूरी बात सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद कुछ बोलते हैं तो आप एम्पैथेटिक पर्सन कहलाते हैं. एक्सप्रेस योर पर्सपेक्टिव. अपनी पर्सपेक्टिव को आप पूरी बात सुनने के बाद एक्सप्रेस करते हैं. सो आफ्टर यू हैव हर्ड द अदर पर्सन आउट क्लियरली, you are in an excellent position to express empathy by voicing how you would feel in that same situation. अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो मुझे किस तरह की फीलिंग होती, इसको एक्सप्रेस करने की क्षमता तभी आती है. सो दैट इज व्हेन यू कैन से दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली ऑफुल. इफ समबडी सेज, आई हैव हैड अ वेरी वेरी बैड डे एट होम टुडे बिकॉज आई हैड अ वेरी वेरी bad fight with a family member and I feel miserable now because I feel that this is affecting my relationship. If someone says like that to you, the first reaction after hearing the whole thing is, yes, I think this is very difficult. This is something which must be affecting you so much, and I can understand how you're feeling, what you're going through. So this is the first statement that will make the other person somewhat comfortable, right? Put yourself in their shoes, experience the moment as if it were happening to you and let your emotions guide you. आप अपने आप को उनके जगह पे रखकर सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो इस बात को आप कैसे फील करते, राइट? सो वंस यू फील दोस इमोशंस, वॉइस इट. जब वो इमोशंस आप फील कर लेते हो तब आप अपने थॉट प्रोसेस को आप एक्सप्रेस करने लगते हो. मोर ऑफन देन नॉट योर इमोशनल रिस्पॉन्स विल बी वेरी सिमिलर टू देयर्स. क्योंकि आप ना अगर कंपैशनेटली सोचते हैं, इमोशनली अगर कनेक्टेड है, तो आप उस बंदे को उसकी नजर से देखेंगे और उसकी जैसे ही आप सोचने लगेंगे. एंड दिस विल कॉज द अदर पर्सन टू फील अंडरस्टूड एंड हर्ड, लीडिंग टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू बोथ. उस वक्त के लिए हम उनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बात को क्लैरिटी के साथ समझना है तो दो तरफा बातें सुनना जरूरी है. एक तरफा सुन के हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, और इधर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं. इधर हम सिर्फ सामने वाला जो डिस्टर्ब्ड है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज अ टेम्पररी स्टेप wherein you are empathizing with this person so that he opens up to you to tell you further about what he or she is going through. That gives you reasons to collect information about how I can collect more information and help this person by knowing
what is real scene, what is reality, what is actually happened. Okay, so be vulnerable. Now we fear vulnerability because we worry that others may perceive us as foolish or weak. कई बार क्या होता है ना, हम अगर सामने वाले की जैसे ही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि ये मेरे साथ खाली नाटक तो नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, इसने तो मेरी फीलिंग्स को झेली नहीं है, इसको कैसे पता व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. So, vulnerability actually helps us to connect with others because it communicates that we are humans. क्योंकि कई बार हमको सामने वाले को ये बताना जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में खुश होना, दुखी होना, रोना, हंसना, अपसेट होना, गुस्सा होना, कई बार रेज योर वॉइस एंड टॉक टू पीपल, ये सब कंप्लीटली नॉर्मल है. क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हमारे रिएक्शंस इसी तरह निकलते हैं, राइट? बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी हैव आवर ओन वीकनेसेस, वी फील हर्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड वी ऑल्सो हैव आवर ओन फियर्स, राइट? आदमी हो या औरत, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी तरह का डर होता है. डर का मतलब ये नहीं कि कमरे में अंधेरा है तो आदमी को डर लगता, नहीं. डर हो सकता है किसी ना किसी रियलिटी के बारे में, हम लोग जिस तरह से आगे के बारे में सोचते हैं, राइट? फियर हो सकता है, मुझे फ्यूचर के बारे में फियर हो सकता है, मुझे मेरे फैमिली के बारे में फियर हो सकता है, मुझे मेरे बच्चे के तौर तरीके को देखते हुए फियर हो सकता है. सो फियर कैन बी ऑफ एनी काइंड. हर्ट, यस, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग. किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ली तो मैं हर्ट हो जाती हूँ. किसी ने मुझसे गाली गलौज कर दी तो मैं हर्ट हो जाती हूँ. किसी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं हर्ट हो जाती हूँ. देखिए, हम इंसान हैं, हमारे हर्ट होने के तरीके और रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर हम इंसान हैं तो हम लोग हर्ट हो सकते हैं, और हमारी अपनी वीकनेसेस हो सकती है. शायद जिस चीज में आप स्ट्रांग है उस चीज में शायद मैं स्ट्रांग नहीं हूं. मुझे शायद कोई सामने बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो मैं इक्वली ऊंची आवाज में चिल्ला के रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हूँ. ये मेरी अपनी लिमिटेशन है, ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, और शायद मैं इसको इसी तरह हैंडल करती हूँ, राइट? सो दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ सेमनेस व्हेन यू टेल पीपल दैट it's absolutely fine to feel this feeling, right? I also feel the same way when such a thing happens with me, or I've also had a similar experience, or I've seen such similar experiences happening with people, right? Don't be afraid to ask for help when you are in a difficult situation. देखिए, मन के अंदर परेशानियों को दबा के रखना, अपने थॉट प्रोसेस को दबा के रखना will only bottle up, और किसी दिन वो ब्लास्ट होके निकलेगा. वो शायद आपको हार्म करेगा या सामने वाले को हार्म करेगा. तो कोशिश करिए कि कभी भी जब आप परेशान हैं तो किसी ना किसी बंदे से, जो जिससे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उससे अपनी बात जरूर शेयर करें. वो जरूरी नहीं है कि आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है ही इज योर कलीग, हो सकता है ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, हो सकता है he is your someone whom you have met and you're comfortable talking to, right? So don't be afraid to ask for help. Asking for help shows vulnerability. Vulnerability show करता है, ये दिखाता है कि आप भी इंसान हैं, और आपको भी जरूरत है कई बार अपने आप को किस तरह डील करना है जानने की, right? You have to make sure that we don't feel upset about things. Vulnerability is when you feel weak and you feel easily hurt about something, physically or emotionally. तो हम लोग इस तरह के इंसान, क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हम vulnerable हो सकते हैं, right? And when we are in a weak moment, when we think in a weak phase of our life, उस समय हम लोग
या तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर हम जो हमें सामने दिखता है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? कई बार बाय शेयरिंग योर ओन इनसिक्योरिटीज एंड मिस्टेक्स वी कनेक्ट थ्रू कॉमन ह्यूमैनिटी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सामने वाले के साथ शायद नहीं होता होगा, तो उसको बताना सही होगा कि नहीं। हो सकता है सामने वाले के साथ भी वही हो रहा हो जो आपके साथ होता है। So it is possible, and if it is not happening also, you have shared your point of view and the other person can share his wisdom or some support by listening and trying to analyze the situation, right? So vulnerability means the state of being exposed to the possibility of when you feel that of being easily hurt, influenced, or attacked or harmed by either मतलब it can be physically or emotionally. कई बार physically, emotionally हम किस तरह से harmed महसूस करते हैं, right? Okay. So empathizing with okay. Now let me okay. Did I miss out? Yes. So vulnerability I have spoken about. Let me go to don't make assumptions. देखिए, कोई भी बंदा आपको कोई बात बताता है तो आप अज्यूम करना शुरू मत करिए। हाँ, इसके साथ ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये भी तो ऐसा ही है। Not necessary. I may have 10 wrong habits, but what I'm going through right now may be something which is genuine, right? So assumptions are the enemy of empathy. आपको assume नहीं करना है, आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनानी है अपने दिमाग में। To have assumptions is to have preconceived notions. ये तो ऐसा ही है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। This may not be true. This may not be the right way to understand that person. This may not be the experience that the other person is going through, right? So you have to make sure that you don't try to assume what the other person is feeling. Don't rush empathy and don't try and empathize before you truly understand the situation. उसने जो पूरी बात बताई है उसको आप समझिए। अगर आपको उसके बारे में ऑलरेडी दूसरी बातें पता है तो इस इंफॉर्मेशन को उसके साथ कनेक्ट करके सोचिए, इज दिस द रीजन व्हाई दिस पर्सन इज अंडर ट्रबल, right? And if you do not know anything about that person, please do not have an assumption about him. Think about it and give him a solution based on what you have heard, and try to analyze it further by collecting more information, right? Use your imagination. You're not going to be able to relate to every single experience from every single person you encounter, right? सामने वाला आपके लिए शायद एक अजनबी हो, या एक पहली बार आपसे बात कर रहा हो। एक स्टूडेंट है जिसने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करी, राइट? एंड यू मस्ट हैव स्पोकन टू द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. It is not necessary that whatever he is saying is correct, and it is not necessary that whatever he's saying is wrong also, right? So you're not going to be able to relate to every single experience, right? But you can at that moment empathize with the person by simply connecting with him and trying to understand him, right? So ability to imagine what someone else is feeling, even if we haven't experienced it ourselves, is critical to empathy. हमने अगर ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं करी है लाइफ में, तो भी उसके साथ ये कहना कि ओके, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट you're going through. Maybe if we talk a little more, we will be able to sort this problem out for you, is what you can help the person with, right? Now let us go to the next slide and understand. One moment. Yeah, let us okay, how to help your child develop empathy. अभी तक हमने जनरली बात करी कि हम किसके साथ एम्पथाइज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों के नजरिए से देखें, देखिए हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे तो बाकी सब तो टीचर्स हैं ही।
तो आपको पता ही है कि आपको अपने बच्चों के साथ कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. So empathize with your child. For example, you're talking to a child, who's having, this is not a classroom situation. It's a general situation that I'm talking about. Are you feeling scared of that dog? Maybe he's a nice dog, but he's barking really loud. That can be scary. I will hold you until he walks by. सड़क पे चल रहे हैं और आप देखते हैं कि एक बच्चा घबरा रहा है क्योंकि he or she happens to see a dog or some dogs who are fighting away on the road, and because of that the child is getting scared. It is not necessary that the dog may be harmful. So this is what you have to tell the child. बहुत 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 इजी वे में आपने बता दिया कि हो सकता है कि दैट डॉग इज अ गुड डॉग, बट राइट नाउ बिकॉज ही इज बार्किंग एंड हिज साउंड इज वेरी हाई, मे बी दैट इज व्हाई you are getting scared and he seems to be a scary thing. So हो सकता है. देखिए, I have a pet in the house. I keep saying this. And at times what happens is people who come to the house, they look at the dog and they say, oh my God, ये तो काट जाएगा, खा जाएगा. और मुझे कई बार कहना पड़ता है कि देखिए ऐसा नहीं है. आपको शायद इसलिए डर लग रहा है कि वो दिखने में ऐसा है. It is a pit bull. So pit bull, people have read so much about it, so they fear, right? So हो सकता है कि क्योंकि आपने इसके बारे में इस ब्रीड के बारे में ऐसा सुना है, शायद इसलिए आप घबरा रहे हो. But actually he's been brought up in this house in such a way that he's a human friendly dog, so he will not definitely harm you. अगर आपको सच में डर लग रहा है तो मैं इसको थोड़ी देर अपने पास बिठा लेती हूँ. आप कंफर्टेबली जाकर बैठने की कोशिश करिए जहां पर मतलब leading them to sit wherever they want to sit, right? Talk about others feeling. कई बार दूसरों की फीलिंग्स के बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Kia is feeling sad because you took her toy car. किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे का टॉय छीन लिया. अब वो दूसरा बच्चा अपसेट है, तो आप पहले वाले बच्चे को कैसे समझाएंगे. देखिए, तो आपने उसका टॉय ले लिया, वो बहुत अपसेट फील कर रही है, उसको बहुत दुख हो रहा है, शी इज वेरी सैड. Can we please give Kia back her car and then choose another one to play with? और आप कोई और टॉय से खेलने की चूज कर लीजिए जिससे आप खेल सकते हैं. There are so many other toys kept here. So this is how you teach them empathy. Small children in the classroom, in the pre-primary class, छीना झपटी करते हैं, तो this is how you should tell them. डांट के बोलो उसका टॉय वापस करिए, उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुम अपनी चीजों से खेलो, is a very rude way of talking to children, right? Be a role, suggest how children can show empathy. For example, let's get Jairam some ice for the cut on his knee. किसी बच्चे को चोट लग गई है, तो हम उससे उस चोट की तरफ बाकी बच्चों का अटेंशन किस तरह से ग्रैब करेंगे, उसको एम्पथाइज कैसे करेंगे. वी टेल देम, ओके, जयराम हैज हैड अ फॉल, उसका नी ब्लीड कर रहा है, क्या हम लोग उसके लिए आइस लाकर उसकी चोट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड देन यू कैन कॉल आउट नेम्स ऑफ 2 चिल्ड्रन to go and get ice from the infirmary so that the child can be helped. So this is the way you share your thoughts with the other children. Be a role model. देखिए, आप as a teacher should be empathetic. Only then can you teach empathy to children, right? When you have strong, respectful relationship and interact with others in a kind and caring way, your child will learn through it. देखिए, अगर आप उस तरह से react करेंगे तो ही आपके बच्चे react उस तरह करेंगे. अगर आप हार्शली रिएक्ट करेंगे तो बच्चे एम्पैथेटिक कभी भी नहीं हो सकते, राइट? यूज आई मैसेजेस. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. मैं अपने बारे में किस तरह से क्या क्या चीजें जानता हूं. सो आई डोंट लाइक इट व्हेन यू हिट मी, इट हर्ट्स. देखिए, कई बार मैंने ये कहा है कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता. सो मुझे ये कहना जरूरी है. देखिए, whatever you want to say, can you say it in a normal tone? I can hear you out. I actually don't like hearing someone shouting on top of their voice with me. I have communicated what I don't like to the other person very clearly, very politely, very subtly. So it is right in relationships. You have to observe what is it that you can
tolerate, what is it that you cannot tolerate. Whatever you are intolerant about, you must tell it in a very, very subtle, polite way to the other person. Validate your child's difficult emotions. Now यहाँ पे एक दूसरा situation देखते हैं. देखिए, sometimes when a child is sad, angry or disappointed, we rush to try and fix it right away. कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत किसी बात से गुस्सा होता है या दुखी होता है या disappointed फील कर रहा होता है, तो हम उसको पुचकारने पहुंच जाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, और उसको उस वक्त खुश करने के लिए, सांत्वना देने के लिए हम उसको गलत को भी हम उस वक्त सही है करके उसको चुप करा देते हैं. Right? We try to protect the child from the pain that he or she is going through. बच्चे ने गलत किया है, पर फिर भी उसको, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव पेरेंट है, तो आप उसको कडल करके, कोई बात नहीं, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, होता है ऐसे कर. This is what we do, right? However, what happens, these feelings are part of life, and once that children need to learn to cope with them. देखिए, कुछ गलत बच्चा करता है या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में बच्चा जाता है, तो हमें उसको उससे किस तरह से उभरना है वो सिखाना है, उससे उसको प्रोटेक्ट करके वो सिचुएशन को अवॉइड नहीं करवाना है. राइट? गलत गलत ही रहेगा. सी, अ रॉन्ग विल रिमेन रॉन्ग ऑलवेज एंड अ राइट विल रिमेन राइट ऑलवेज. आप चाहे कुछ भी कर ले, गलत गलत ही रहेगा और सही सही रहेगा. तो हम क्यों बच्चों को गलत चीज को हम सही बताएं और सही चीज को गलत बताएं? जरूरी नहीं है. सामने वाले को सही बात सही तरीके से बताना जरूरी है. ट्राई टू टेल द थिंग इन अ राइट tone. Tell the child in a right selection, with right selection of words, right? So क्या होता है ना, in fact labeling and validating difficult feelings actually helps children learn to handle them. देखिए, कई बार होता है ना, बच्चा गुस्सा होता है, तो आप कह सकते हो, हाँ गुस्सा हम हो सकते हैं, शायद मुझे भी गुस्सा आता अगर आपने ये किया. देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया हुआ है कि टेलीविजन देख रहा है बच्चा, यू आर रियली मैड दैट आई टर्न ऑफ द टीवी. बच्चा टेलीविजन देख रहा है और मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया. बच्चे को बड़ा जोर से गुस्सा है कि मम्मा ने बंद क्यों कर दिया, मैं तो देख रहा था. देखिए, कई बार होता है कि हम लोग, बच्चे लिबर्टी लेते हैं, राइट? कई बार होता है कि हमने एक बार अलाउ किया तो बच्चे दूसरी तीसरी चौथी बार अपने आप ही उसको अपना राइटफुल वे में करने लगते हैं. शायद हम उसको सही नहीं मानते, पर रोकते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं टीवी बंद कर दूंगा तो गुस्सा हो जाएगा, मैं टीवी बंद कर दूंगा तो वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि टीवी के सामने ही खाना खाता है, मैं टीवी बंद कर दूंगा तो शायद आगे गुस्सा होकर पढ़ाई नहीं करेगा. मेरे पास कई सारे रीजंस है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को इसी तरह से टॉलरेट किया है. बच्चा गुस्सा होता है, पैर पटक के कमरे से निकल जाता है, खाना फेंक के चला जाता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव टॉट कि खाना खाना है तो टेलीविजन ऑन होगा तभी आप खाना खाएंगे. तो मेरी गलती मैं अपने बच्चे पे इम्पोज कर रही हूँ. राइट? सो व्हेन आई स्विच ऑफ द टीवी, maybe the child will get angry. What you tell them, the child is, I understand that you're not happy because I did not allow you to watch your favorite program right now. But let us do something else instead. We can do something else which will be interesting. हम उसको distract कर रहे हैं, right? मैंने टीवी नहीं देखने दिया, पर मैंने दिमाग में कुछ और ऐसा सोच लिया जो probably can make that child distracted and interested too. तो जैसे मैंने बोला, खाने वाली बात है, खाना छोड़ दिया है, मुझे लग रहा है कि वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने खाने की प्लेट उठा के किचन में रख दिया है और बच्चे से बोला चलो एक काम करते हैं, आज हम तुम्हारी इंटरेस्ट की दो चीजें करेंगे इस घर में. One is, you always wanted to make sandwiches with me in the kitchen, or bake a cake with me in the kitchen, or anything that can come up. Let us do that today as soon as you finish food. So we will have a very good connect with each other. हो सकता है बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है उसको क्योंकि दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो थोड़ी और इंटरेस्टिंग ही के अलावा उसमें लर्निंग स्किल्स भी है, अगर आप उसको देते हैं तो शायद वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा. सटली बाद में आप उसको ये भी बता सकते हैं कि टेलीविजन कंटिन्यूअसली वॉच करने से हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, हम लोग अपने आप को उससे
डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और हमारा टेलीविजन व्यूइंग एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए. लेट अस डिसाइड फ्रॉम टुडे दैट वी विल वॉच टीवी ओनली फॉर दिस मच टाइम, और twice in a week for say 1 hour each. Depends upon how you want to work it out with your child. So it is important that even if your child is upset about something, distracting him and actually easily telling him that this is why I switched it off and this is an alternate that we can do. And now let us have a pact about how often we can do the activity which you have been doing endlessly. All right. So this is something that you can look into. Developing social emotional skills. Now our classroom is a community. हम लोग classroom को एक community बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह की बैकग्राउंड से बच्चा आया हुआ होता है, हर तरह की परेशानियां या बहुत कई बार दे कम फ्रॉम अ वेरी पैम्पर्ड background also. So helping build healthy social emotional skills in your students is very important. कई बार हमें in the classroom ऐसी बातें शेयर करना जरूरी है जो कि उनकी थॉट प्रोसेस को मोल्ड करे, राइट? सही गलत को वैलिडेट करना बच्चों को आना चाहिए. यस एंड नो क्यों होते हैं, why some things are denied and why some things are agreed upon. These things can be explained to them by different ways. For example, as a teacher, you can be a role model for them. So, if you model a good behavior in front of the students, आपका attitude, आपका language जो आप use करते हैं और आपके expressions बच्चों के साथ जिस तरह से आप करते हैं, वो बच्चे हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते हैं. You use very, very kind words with them. You speak in a very pleasant manner with them. Just notice that your children in that particular class will always behave in the same way. Secondly, listening to your children is very important. Teacher has to be an active listener also, right? Don't always be a talker in the class. हमेशा मैं नहीं होना चाहिए. हमेशा दूसरों को भी चांस देना चाहिए बोलने को, एक्सप्रेस करने को. नाउ इसमें क्या हो सकता है, when you are talking to the children and when you are including them to give their point of view also, then what happens, there is a connect which is built between children, right? Teach explicitly. Now take the time to teach these skills to your students. Even 15 minutes once per week is enough to make a huge impact on children. आप एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को और उस स्टोरी से रिलेटेड कोई वैल्यू हम अगर हफ्ते भर किसी ना किसी फॉर्म में फॉलो करते हैं. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी सिखानी है तो पंक्चुअलिटी डज नॉट मीन कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम. Punctuality has lot of effects. Completing the assignment in the given point of time, completing the sum within the time that is allotted, right? Doing my homework as soon completing it in the expected time, right? Sharing my thoughts as and when asked. So if you look at it, values can be stitched with what you're teaching in the classroom. आपको ये नहीं कहना कि मैं पंक्चुअलिटी सिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों, इसलिए आज मुझे ये करना है, कोई जरूरत नहीं है. आपने स्टोरी सुनाई, उसमें पंक्चुअलिटी के बारे में बताया, डिसिप्लिन के बारे में बताया, या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में बताया, या क्लेनलीनेस के बारे में बताया, कुछ भी बताया, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट अगर हम अपने हर पीरियड में एक हफ्ते के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि सटली, विदाउट making it very evident, the child is learning. There is a behavioral change that you're expecting is happening in the class, right? So you can develop these kinds of. क्या होता है ना, जैसे cleanliness नहीं होता है तो empathy किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं क्लास में. बच्चों को ये भी बता सकते हैं, देखिए आप गंदगी छोड़ के जाते हैं तो जो क्लासरूम क्लीन करने वाली आया है उसके लिए कितनी डिफिकल्टीज होती है, उसका कितना समय इस क्लासरूम को क्लीन करने में जाता है. 8 घंटे की ड्यूटी में वो कितने घंटे काम करेगी तब जाके उसका काम कंप्लीट होगा. क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं अपना
अपनी गंदगी को उठाकर जहां पर मुझे उसको डिस्पोज करना है मैं कर सकूं. सो थॉट्स आर टू बी पुट इनटू द माइंड इन सच अ वे दैट दे स्टार्ट thinking about it. Okay, the responses that we can give children to display empathy. बच्चों के साथ जब हम empathy को display करना चाहते हैं तो किस तरह की रिस्पॉन्सेज होती है. देखिए, जब अगर हम पिटी करते हैं बच्चों के ऊपर तो हम कहते हैं आई एक्नॉलेज योर पेन, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को, राइट. सिंपैथी में बोलता है आई केयर अबाउट योर पेन, मैं आपके पेन को के लिए आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन, मैं समझ सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज तुम्हारे साथ ना हो. एम्पैथी में क्या होता है, आई फील द पेन एंड व्हेन आई फील द पेन I actually want to help out the person to get out of it, right? And compassion में क्या होता है, I want to relieve your pain. मैं compassionately ways and means सोचती हूँ जिससे कि मैं उसकी पेन को रिलीव कर सकूं. देखिए, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं एंड इन डिफरेंट वेज यू कैन एक्चुअली एम्पथाइज विद अ पर्सन एंड हेल्प. लीडरशिप में भी एम्पथी बहुत काम आती है. Teach point of view, it is important that students learn the necessary social skill of अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने बताया ना कि हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या मैं करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिराइव करके बच्चों को दिखा सकती हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट वी गिव अ पर्सन. देखिए, हम लोग बोलते हैं ना क्लासरूम में बच्चे बुली होते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चे डरते हैं ऐसे बच्चों से. क्यों होता है ये? अगर हम उसको एनालाइज करने लगेंगे और समझने लगेंगे तो उसके पीछे शायद कोई ना कोई ऐसी गहरी बात होगी जिसके कारण वो बच्चा इस तरह की बिहेवियर को डिस्प्ले करता है. हो सकता है कि मेरे उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के तरीकों से शायद वो इस थॉट प्रोसेस से बाहर आके अपने आप को रिफॉर्म कर ले, राइट. लीडरशिप एक्चुअली रिक्वायर्स एम्पैथी. सो एज अ टीचर, if we do not practice empathy in the classroom ourselves, we do not teach empathy to children in the classroom for relationship building that they have to do in future, I'm sure it is not हम लोग एज अ टीचर अपना कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा कर रहे हैं. प्ले दिस गेम, हम छोटा सा गेम आपको बता रही हूँ. दिस इज अ गेम दैट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड डेवलप एम्पैथी. गिव स्टूडेंट्स सिनेरियो and have them discuss and act out how the people in the scenario might feel. देखिए, अब आप एम्पैथी गेम है, द किड्स एट द पार्क लाफ एट हिम. ये मतलब ऐसे चिट्स में आपने अलग अलग सिचुएशंस लिख दी और बच्चों को दे दिया और आपको वो एनैक्ट करके दिखाना है. एक बच्चा एनैक्ट करके दिखाता है और दूसरे बच्चे उसको एनालाइज करके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग उसमें से डिराइव करते हैं, राइट. एम्पैथी कॉन्सेप्ट, समवन एल्सेस शू. टीचर teaches students what this phrase means, walking in someone else's shoes. Then have them practice putting themselves into others' shoes to imagine how they would feel in different circumstances. For example, मेरा टिफिन बॉक्स आज क्लासरूम में गिर जाता है. कुछ बच्चे इग्नोर करके निकल जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, उसका टिफिन गंदी जो खाना गिर गया उसको समेटने में मदद करते हैं. कुछ बच्चे उसके बाद अपना टिफिन भी ऑफर करते हैं. देखिए, 3 तरह की सिचुएशन हो गई जहां पर बच्चे के साथ हुआ. अगर आप उसकी जगह पे होंगे तो आप क्या करेंगे? नाउ दीज आर you have to discuss topics in the classroom which will bring out the correct situation for the children to understand. This is something that you do. A wrinkled heart, no, you have to understand before you speak. Think and be smart. It is hard to fix a wrinkled heart. देखिए, क्या होता है ना, जब आप कोई बात अपने मुंह से निकाल देते हैं, क्या हम उसको वापस अपने मुंह के अंदर डाल के उसको अंडू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट. सो बिफोर यू स्पीक, will it help or hurt is what you should think about. Be on alert. Some words do harm, so do your part. It is so hard to smooth a wrinkled heart. देखिए, पेपर को पेपर हार्ट्स बनाइए, एक को क्रम्पल कर दीजिए, एक को ऐसे का ऐसा रखिए.
crumpled one will never regain back the shape that you want because उस पे creases पड़ चुकी है. वैसे ही अगर आप कोई बच्चों को ऐसी बात कर देते हैं जो बच्चों को चुभ जाती है तो जिंदगी भर उनके मन से नहीं जाती. Similarly, if you tell them something very nice, that too stays in the heart of the children. This is a beautiful book called A Wrinkled Heart. I would recommend all of you to, share this, इसका आप चाहिए तो screenshot ले लीजिए and let the children read this book and understand the importance of compassion and empathy through this book. इसका video version भी available है, YouTube पे भी आप check कर सकते हैं, शायद आपको उस पे मिल जाए. लेकिन बच्चों के साथ share करिए, छोटे बच्चों के साथ, because they would understand what we are trying to tell them. See, I may exceed by 5-10 minutes. You'll have to bear with me. Let me explain what is sympathy versus empathy. Now, एक word है sympathy और एक है empathy. इसमें लिखा है कि sympathy overlooks subtle signs and only takes surface meaning. किसी के घर में death हो जाती है, हम उनके घर जाते हैं, हम हाथ जोड़कर थोड़ी देर बैठकर फिर उनको उनसे गले मिलकर या उनके कंधे पे थपथपाकर हम लोग निकल जाते हैं. दिस इज सिंपैथी. और एक वो सिचुएशन होती है जब हम उस बंदे के साथ बैठकर उसके दुख को सुनकर उसके फीलिंग्स को समझकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं. इसको हम एम्पैथी कहते हैं, राइट? सो व्हेन डिस्क्राइबिंग व्हाट यू फील अबाउट द अदर पर्सन्स इमोशंस, you might use these two words, sympathy and empathy, right? Though these words sound very similar, they both come from Greek words, but there is a difference in each word. Now let us understand. Sympathy is acknowledging that the other person is going through an emotional or physical struggle, supporting them and giving them comfort. Console करके आ जाना. This is sympathy. Empathy is something more than just this. It is actually understanding what the other person is feeling because you have had a similar experience yourself, or you are able to put yourself in their shoes. राइट? दोनों में से हो सकता है कि मैंने ये पहले खुद झेला हुआ इसलिए मुझे पता है इस दुख के बारे में, या मैं उसके शूज में अपने आप को डाल के अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आएगा कि कितना दुख उस इंसान को इस वक्त महसूस हो रहा है. राइट? सो हाउ कैन यू ओवरकम चैलेंजेस दैट comes in the way of empathy? First of all, it requires attention. कई बार आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको empathize करना है तो आपको पहले attentively उस बंदे को सुनना, समझना और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, right? And it takes time. जरूरी नहीं है कि हमने whatever you tell them in one sentence is what will complete everything, right? What is going on for you? You look like you have something on your mind. कई बार इंसान आपके सामने तब खुलता है जब बहुत ज्यादा वो झेल चुका होता है, राइट? तब तक वो शायद आपके पास आता भी नहीं है, तब तक उसके शायद बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है, राइट? सेल्फ एस्टीम गेट्स इन द वे व्हेन योर माइंड इज सो बिजी विथ negative thoughts about you, then you don't have the space to really be present for another person. आपके दिमाग में खुद ही इतनी सारे नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप दूसरे की मदद कैसे करेंगे, राइट? आप दूसरे की सोच को नहीं समझ सकते हैं जब तक आप अपनी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से नहीं निकालते हैं. So often people think they are empathetic, but when you consider what are you thinking about when you're listening to the person, you may find that you're busy thinking about you. आप एक्चुअली सुन रहे हैं खोखले दिमाग से, आप उसकी बात सुन रहे हैं पर आप अंदरूनी आपके जो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि आप मदद नहीं कर रहे हैं, आप खाली सुन के उसके साथ बैठे हैं. अब ठीक है, अब इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी तो होता है. जब मेरे साथ होता है तो क्या मैं ऐसे रोना रोता हूँ क्या? मैं भी तो चुपचाप झेलता हूँ. दिस इज माई थॉट, right? So this is the difference between how empathy can be extended. Preconditioned responses. The longer you know a person, आप एक इंसान को जितना ज्यादा जानते हैं, उसकी लाइफ की हिस्ट्री को ज्यादा जानते हैं, the more history you have with them, the harder it is to put that aside and simply be with them. कई बार होता है कि हम इंसान को इतना अच्छे से जानते हैं
तो हमारे दिमाग में कुछ प्री कंडीशनड थॉट्स भी होते हैं, अरे मैं तो जानता हूं इसको, ये ऐसा ही है, ये रोता ही रहता है हमेशा, इसकी ही कैनॉट बी हैप्पी एवर। ये मेरी प्री कंसीव्ड थॉट है, ये मेरी प्री कंडीशनड थॉट है, क्योंकि मैंने हमेशा उसको, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं, मैंने अंदरूनी उसकी तकलीफ को कभी जानने की कोशिश नहीं करी है। ऊपर ऊपर से जो मैं सोचता हूँ बोलता हूँ, दैट इज व्हाट आई हैव बीन looking into. So what you need in a caring classroom is empathetic concern, cognitive empathy and emotional empathy. मैंने इसके बारे में आपको पिछले few slides back I talked about it. So empathetic concern, it is the foundation for a caring classroom. Like a good Samaritan, we tune in and stop to help. Likewise, a teacher has to model kindness and concern for students. हमेशा टीचर को ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो मुझे 40 बच्चों को अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। हर एक की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा थोड़ा भी अपसेट दिखता है तो शायद उस समय नहीं, शायद ड्यूरिंग द रिसेस और समथिंग जाके उस बच्चे से बात करना जरूरी है। दिस इज हाउ इट विल कनेक्ट विथ यू एंड दैट चाइल्ड, राइट? कॉग्निटिव एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल सी द वर्ल्ड एंड थिंक अबाउट इट। दुनिया किस नजर से लोग देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, परसीव करते हैं, राइट? और इमोशनल एम्पैथी, द केमिस्ट्री इन अ कनेक्शन टू पीपल, बीइंग एबल टू सेंस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट हाउ अ पर्सन फील्स। घड़ी घड़ी हर मोमेंट पे वो कैसे फील कर रहा है। देखिए, परिवार में हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं, ये इमोशनल एम्पैथी भी होता है। और ये एक कनेक्ट होता है जिससे कि हम लोग अपने बिहेवियर को दूसरे के बिहेवियर से रिलेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, राइट? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी इन द क्लासरूम? इट इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। देखिए, क्लास में बच्चा आपको ट्रस्ट करने लगता है, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। देयर इज अ पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप दैट इज बिल्ट, राइट? इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू रिलीज देयर इमोशंस। अपनी इमोशनल तकलीफों को वो रिलीज कर देता है, तो वो रिलैक्स्ड होके क्लासरूम में पढ़ सकता है। टेंशन्स और जो दिमाग में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स, उससे वो अपने आप को बाहर कर सकता है। और इट हेल्प्स यू टू एनकरेज देम टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स दैट दे आर गोइंग थ्रू। कनेक्टेडनेस बनती है और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। रेजिलियंस क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता वाली फीलिंग से हम अपने आप को कैसे होप के साथ बाहर लाते हैं। Creating a safe environment that is conducive to learning. Learning can become better when you are able to connect with the children like this. Asking questions help. Small talks, empathetic questions. How are you feeling? बच्चों से अगर आप पूछते हैं, how are you feeling today? What made you feel that way? कई बार upset बच्चा दिखता है तो आप उससे बोलते क्या, how are you feeling today? And the child may say, I'm not happy today, I'm upset today. Then you ask, what made you feel that way? Why do you feel that way? What could help you to feel better? What can I do to support you? Now look at the questions. These are step-by-step questions which relates from one to another, right? So, practice empathy activity for children, actively listening to others instead of talking. आपको ना क्लास में जब आप पढ़ाते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कई बच्चे बिना हाथ हैंड रेज के अपना आंसर देने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिखाना बहुत जरूरी है कि देखिए, अपना टर्न आने पे बोलना, दूसरों को भी टर्न देना है, ये एक फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर सो मेनी अदर्स एंड like me, others are also enthusiastic to answer, right? If something seems wrong, ask how they are doing. देखिए, गलती हो जाए तो झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के साथ उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सिखाना जरूरी है। पे अटेंशन टू द नीड्स ऑफ अदर्स। दूसरों की जरूरतें क्या है, इस पे फोकस करिए। देखिए, आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, आज वो बुक लाना भूल गया है, आप अपनी बुक छुपा छुपा के पढ़ते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू शेयर। This is a bad habit. So you have to teach children that sharing is actual caring. You have to teach them why sharing is caring. You have to give them examples and teach them about it. Instead of judging someone, try to understand them. ये तो ऐसा ही है, ये तो झूठी बोलता है, ये तो काम ही नहीं करता है.
देखिए, बच्चे होमवर्क कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। समझने की कोशिश करिए, उसको उस सिचुएशन से कैसे निकालना है इसकी कोशिश करिए। लर्न अबाउट अदर पीपल कल्चर एंड बैकग्राउंड्स, जो हर अलग अलग तरह के बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका कल्चर क्या है, किस तरह की ब्रिंगिंग अप उनकी, उसको समझने की कोशिश करिए। सी एम्पैथी अगर आपके अंदर है तो यू आर अ गुड लिसनर, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, यू आर हाईली इंट्यूटिव। इंट्यूटिव क्या होता है कि आप अगला क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट? यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। यू फील ओवरवेल्म बाय नेगेटिव एक्सपीरियंस, आपको नेगेटिविटी पसंद नहीं है, इसलिए आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोन टू सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन, देखिए जो एम्पैथेटिक होता है ना, वो कोशिश करता है कि लोगों को जोड़ के रखे। ये विड्रॉ हो जाना सोशली, अपने आप को दूसरों से आइसोलेट करना, ये ऐसे लोग करते हैं जो जिनको कोई सुनता नहीं है, जो इनकी इनको अपने में इंक्लूड नहीं करता है, राइट? Others often seek advice from people who are empathetic, and these people are able to recognize who are honest and dishonest, right? Now, expressions to show empathy. I know how you feel. This is something that you can tell your family, your friends, your colleagues, your children. I can imagine how you feel. I see where you're coming from. मैं समझ सकता हूँ ये तुम इस तरह की सोच कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ रही है. Put yourself in my place. मैं अपने आप को अगर तुम्हारी जगह पे रख के सोचता हूं तो मेरे अंदर भी सेम फीलिंग्स आती है. आई अंडरस्टैंड हाउ कंफ्यूजिंग दिस मस्ट बी. घर की परेशानियों में कंफ्यूजन्स बहुत होती है. इस चीज को समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है, और ये वही इंसान दूसरे की मदद कर सकता है जो उसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच के एक सजेशन ऐसा देकर हेल्प करने की कोशिश करे जहां पे सिचुएशन बेटर हो सके. आई कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर यू, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज. एक एम्पैथी मैपिंग होती है जो हम लोग कर सकते हैं. देखिए, यूजर जैसे मैं अपने किसी स्टूडेंट पे एम्पैथी मैपिंग यूज करना चाहती हूँ, तो वी हैव टू फर्स्ट allow that person to say whatever he wants to convey, right? So he says what is it that makes him feel comfortable with, right? Then he also shares what he thinks about, then he shares what he feels, and then he does things based on what he says, what he thinks, and what he feels, all these things together. So see, here is an example. Because I want to feel convenient, I like to use phone all the time, and I enjoy picking up coffee. Think ye, मेरी thought ये है कि I don't have time for long lines, so I want everything to be conveniently handed over to me. एंड आई हैव टू मच ऑफ कॉफी बिकॉज मुझे लगता है कि कॉफी पीने से जो कैफीन मेरे अंदर जाती तभी मेरी दिमाग चल सकता है, राइट? And if I don't do this, I feel impatient and overwhelmed, right? And actually इन सब के कारण मैं रोज कॉफी बहुत ज्यादा पीती हूँ, और आई एम heavily addicted to my phone. Now think about this. This is the process in which our mind works, right? Empathy for ourselves can be created only when we try to understand the feeling properly. So think and feel can be your dreams, your ambitions, your motivations, your frustrations. What you see is the environment and through media. What you say and do is your attitude, your appearance, your behavior, what you do in your spare time and the day you like to spend, right? And what you hear from others is what is heard. कई बार पेन्स एंड गेन्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे अपने फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड चैलेंजेस, और कई बार हम अपने गेन्स को भी डिस्कस करते हैं, मेरे वांट्स एंड नीड, गोल्स, मेरे सक्सेस. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर चिल्ड्रन, if you want to map their empathy, right? So dear teachers, understand that you have to be a compassionate person, you have to be an empathetic person, and you have to be accountable for both compassion and empathy for making the lives of people around you better.
So to know yourself, to create a deeper sense of external and internal self-awareness, compassion has to be there within us, right? You can connect well with others if you are in empathy. And compassion और empathy को दोनों को अगर हम लोग join कर लेते हैं तो हम दूसरों के साथ अच्छी relationship और communication develop कर सकते हैं. So as I said, listening is important. Accepting that others, all people are not alike, people are different. सबकी सोचने का तरीका अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है, और मेरे एटीट्यूड और आपके एटीट्यूड में फर्क हो सकता है. ये मानना, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. Try to read a lot about different kinds of feelings people go through, new cultures, new customs, human experiences, different things that happen in different people's life, right? So listening, asking questions, avoiding being judgmental and assuming, and recognizing your feeling that can be connected with others are some of the things that you can do in your workplace with your colleagues. Okay, so these are some things that I have found interesting. Remember, empathy, always keep this in mind, that empathy बहुत जरूरी है, right? How would you like it if the mouse did that to you? Now this lady is talking to a cat who has just killed a rat, and that lady is trying to teach. It's just an example, you can use it with children in a real life situation. What will happen if the same thing is done to you by somebody else, right? So and these are four terms which are explained here very sweetly. Apathy, I don't care if you are suffering, जब मुझे आपके बारे में कोई परवाह नहीं है. This, I feel sad to know your suffering is sympathy. I'm here and I understand your suffering is empathy. I will help you end all your sufferings is compassion. Okay, so empathy, everybody needs somebody. Very important. Let us model and mirror. अपने आप को ऐसे डालें कि हम खुद empathize कर सके लोगों को और दिखा सके लोगों को, right? Putting yourself in other people's shoes, asking if you can help, treat others the way you want to be treated, right? Hurtful or helpful, and how you feel better and they feel better. This is empathy again redefined for you, right? So benefits of empathy, इससे stress management होता है, it improves our communication, it supports moral behavior, it improves working environment. It helps us to boost our social behavior, connect with people, introduces, a positive attitude. And empathy is like feeling the suffering of another person. So, if you have to be empathetic towards others, be a good listener. Show your concern, extend help, don't be judgmental. Some thoughts before, we part. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता. So let me be kind to you. Let you be kind to others. An act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Kindness is never wasted. You have to make sure that you are showing some kind feelings for others. Sometimes we get so caught up in our problems, we feel to realize others have them too. हम अपनी परेशानियों में इतना खो जाते हैं कि हम ये नहीं रियलाइज करते कि दूसरों की जिंदगी में भी परेशानियां हैं. शायद मुझे अपनी परेशानियों को हाईलाइट करने की जगह दूसरों का भी सोचना बहुत जरूरी है. I have learned that people will forget what you said. आपने जो कहा लोग भूल सकते हैं. People will forget what you did. आपने जो किया वो भी लोग भूल सकते हैं. But people will never forget how you made them feel. उनकी परेशानी में अगर आपने अच्छा महसूस कराया है तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेंगे. If we must fight, from today,
to try to be kind in every way to every person, big or small. I will help them if they fall. When I love myself and others too, that is the best that I can do. Thank you so much for attending this session. You have just attended a session on empathy. Thank you so much. And if you have any question, you can put it in the chat box. And I'm really sorry I took some extra time because I thought I should complete what I was speaking. Thank you so much. God bless each one of you. And I hope each one of you inculcate this value in yourself and be good human beings, be good family members, be good teachers, be good listeners. Thank you so much. And thank you so much for all the kind words that you have been putting in the chat box. Thank you so much.